Carrier's legal liability insurance policy. Carrier's legal liability. Huh? Let us begin now. This is Carrier's legal liability insurance. So before we proceed, I will give you a latest update on the product. In fact, this, according to latest available data, the total road transportation business in India in previous calendar year was estimated to be around $157.45 billion. 157.45 billion US dollars. And the majority of India's freight transportation, that is over 70%, is carried out by the road. Because the transportation of goods have multiple options. But the maximum transportation is done by the road. And the market value of the Indian road freight transport industry is estimated to be around 12.13 trillion rupees in 2023. The reason of this growth is urbanization, population increase, e-commerce boom, rising income level, and growth of the road freight market. These are the factors which are contributing for the growth of the road freight market. The good part of the story is India has the second largest road network and its national highway span a total length of 1,46,195 kilometers. So forming the primary network of the country. This factor is focusing on the road network, road transportation and transportation business in India. So this is the latest update. Because the transportation work is done by all means, waterways, airways, railways and roadways. But the product we have launched is not for waterways, airways, railways. This relates to roadways only. राजेश यादव जी की टीम है क्या? राजेश जी खुद भी हैं, तब तो मुझे हिंदी इंग्लिश मिक्स करना पड़ेगा। और भी कोई है राजेश जी आपकी टीम में से? ओके 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 ठीक है, मैं देख लेता हूँ। So all these methods of transportation are used. पानी से भी भेजा जाता है, पानी के रास्ते से, शिप, स्टीमर, बोट, हल. By airways also cargo carrier, helicopter or devices, air devices like drone. By railways also goods train and other specific trains. और जब रोड की बात आती है तो रोड से तो फिर GCCB is the only carrier which is carrying the goods, because you cannot carry the goods in the PCCB or private car. So the ultimate solution is GCCB, goods carrying commercial vehicle.
ये GCCB can be LCB, MCB, HCB, tanker, refrigerated vehicle, open body or closed body. All these kind of vehicles are used for carrying the goods. Now, why carriers legal liability insurance? Any transporter firm or any carrier firm or logistic firm who is engaged in transporting the goods from one place to another place, they have the possibility of loss or damage to the goods every day. क्योंकि किसी ट्रांसपोर्टर के पास 5 व्हीकल हैं, किसी के पास 50 व्हीकल हैं, किसी के पास 500 व्हीकल हैं. Now you never know कि कौन से व्हीकल का एक्सीडेंट होगा, किसमें लॉस और डैमेज होगा. But this is a part of a daily routine. Every day, some transporter is suffering the loss or damage to the goods every day, somewhere in any part of the country. How they will compensate? They are earning only the freight. माल को ढोने के लिए वो केवल भाड़ा ले रहे हैं कस्टमर से. गाड़ी उनकी है, ड्राइवर उनका है, डीजल उनका है, सारी रिस्क उनकी है. कस्टमर से सिर्फ भाड़ा ले रहे. अब ये भाड़ा या फ्रेट इतना है कि उनका सर्वाइवल भी हो जाता है, इनकम भी हो जाती है, ड्राइवर के खर्चे भी निकल जाते हैं, डीजल के खर्चे भी निकल जाते हैं, and they are running in profits. लेकिन यही प्रॉफिट सारा टोटल लॉस में बदल जाएगा और बैंकरप्सी में बदल जाएगा अगर डेली के एक्सीडेंट होने लगे, डेली लॉस और डैमेज होने लग जाए. Where from they will pay the compensation? If goods are damaged in transit, the owner of the goods or the marine insurer, in case of subrogation under marine policy, may sue the transporter for the losses. या तो राजी राजी दे दो भैया, वरना कोर्ट केस रिकवरी कर लेंगे. तो कहाँ से लाएगा वो ट्रांसपोर्टर? Because the goods or damage can be damaged to any extent. सारा का सारा व्हीकल ओवरटर्न हो सकता है, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. And under all these circumstances, he has to pay the compensation to the owner of the goods from his own pocket. This is not possible. If the losses are causing every day, this is not possible. He will pay the compensation from his own pocket. और उसको क्योंकि ट्रांसपोर्टर फर्म तो प्राइवेट फर्म है, उसको कोई इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट तो सपोर्ट करने वाली है नहीं, अपनी जेब से पे करना है. Under these circumstances, he has only one option, and that is carrier's legal liability insurance. तो कौन लेता है इस पॉलिसी? ट्रांसपोर्टर, कैरियर. अच्छा, ये लोग अपने व्हीकल भी यूज करते हैं और भाड़े पर भी लेते हैं. मान लिया मेरा बिजनेस इतना बड़ा है कि मुझे 50 ट्रक्स की जरूरत है, लेकिन मेरे पास है केवल 30. 20 को खरीदने की अभी स्थिति नहीं, तो मैं क्या करूँगा? 20 ट्रक भाड़े पे ले लूँगा, लेकिन दूसरों का सामान दिया है उसको तो पहुँचाऊँगा, तो भाड़े पे ले लेते. अब रिस्क दोनों में ही, चाहे वो ओल्ड व्हीकल हो या वायर्ड व्हीकल हो, दोनों में ही गुड्स डैमेज हो सकता है, दोनों में ही लॉस हो सकता है, तो दोनों की रिस्क कवर करनी पड़ेगी. और एक कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जो दोनों की रिस्क कवर कर देगी. तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन. तो यही एक पॉलिसी है जो कि ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प के लिए काम आती है, लेकिन इसका कवरेज बड़ा लिमिटेड है. 3 मेजर रिस्क कवर है इसमें: फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट, और चौथी नेग्लिजेंस. ये 4 रिस्क पैरल कवर्ड है: फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय, नेग्लिजेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट, नेग्लिजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स.
और ज़्यादातर लॉसेज नेग्लिजेंसी हो। दो रिस्क के एक्स्ट्रा पैसे देकर के कवर की जा सकते हैं, रॉयल्टी मिस्टेक एंड टेरर। ये दो एड ऑन। पॉलिसी 12 महीने के लिए, केवल 1 साल के लिए इशू होगी, हर साल रिन्यू कराई जा सकती है। एस्टेब्लिश फर्म को पॉलिसी दी जाती है, उसको इस कंडीशन पर दी जाती है कि आपके पास जितने भी व्हीकल हैं सबकी मोटर की पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए। अगर इनकी रिस्क मोटर की पैकेज पॉलिसी में कवर नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस हो जाने पे भी क्लेम पे नहीं करेगी। सारे व्हीकल रोडवर्दी कंडीशन में होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं वो होने चाहिए, मेंटेनेंस के लॉग बुक है, कंसाइनमेंट नोट है। और ये आपका चॉइस है कि आप चाहे तो सिंगल पॉलिसी लें, आप चाहें तो फ्लीट पॉलिसी लें। हर व्हीकल के लिए भी आप अलग से पॉलिसी ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लीट पॉलिसी लें। एक्चुअली सिंगल पॉलिसी वहाँ जरूरत पड़ती है जहाँ पर कि उसके अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट हों। जैसे टैंकर भी चल रहे हैं, उसके सीमेंट भी लाना है उसको, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अलग अलग तरीके की पॉलिसी ले लेता है, अदरवाइज नॉर्मली फ्लीट पॉलिसी लेती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कवर ड्यूरेशन। कवर ड्यूरेशन का मतलब है रिस्क कहाँ से कहाँ तक की कवर होगी। मीन्स व्हेन द रिस्क विल कमेंस एंड वेयर इट विल टर्मिनेट। दो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होगी, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पे खत्म हो जाएगी। लेकिन 3 बड़े फैक्टर इसमें शामिल है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर शुरू होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर लोडिंग के टाइम से शुरू होगी, क्योंकि लॉस और डैमेज तो लोडिंग में भी हो सकता है। फिर सारी जर्नी की रिस्क भी कवर रही, फिर अनलोडिंग की रिस्क भी कवर रही, फिर 3 दिन की एक्स्ट्रा रिस्क कवर रहेगी क्योंकि गाड़ी अनलोड नहीं हो पाई, गाड़ी खड़ी है, 3 दिन तक रिस्क कवर। चौथा दिन से रिस्क टर्मिनेट। गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी में भी डैमेज हो सकते हैं। When the vehicle is parked and the goods is not unloaded, the goods can be damaged. Goods can be stolen. Goods can be lost. लेकिन हमारी पॉलिसी क्या कवरेज करती है? फायर, एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन एंड नेग्लिजेंस ओनली। तो 3 दिन का एक्स्ट्रा कवरेज मिल गया इसमें। अब प्रीमियम पैरामीटर्स कैसे होंगे देखिए। प्रीमियम 3 चीजों के बेसिस पर निकलेगा। जीबीडब्ल्यू लिमिट ऑफ इंडेमनिटी एंड एड ऑन कवर्स। जीबीडब्ल्यू हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिल जाएगा, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी ट्रांसपोर्टर दे देगा, क्योंकि उसको सेलेक्ट करनी है। एड ऑन कवर ट्रांसपोर्टर खुद सेलेक्ट करेगा। अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो व्हीकल की बॉडी कैसी है देखना पड़ेगा। फ्लीट डिस्काउंट फ्लीट के हिसाब से मिल जाएगा, कितनी बड़ी होगी। पास्ट क्लेम हिस्ट्री देखी जाएगी, व्हीकल्स की फिटनेस देखी जाएगी। कोई क्लेम आया तो हर क्लेम पर 2% कंपलसरी डिडक्टेबल होगा, जो कि मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 5,000 रुपये होना चाहिए। टेररिज्म के केस में डिफरेंट हो सकता है। कुछ पॉलिसी का जनरल एक्सक्लूजन है, जैसे थर्ड पार्टी की लायबिलिटी कवर नहीं हो, चाहे वो गुड्स डैमेज हो चाहे वो पर्सन खुद डैमेज हो। पर्सन की एक्सीडेंटल डेथ भी हो गई है तो भी रिस्क कवर नहीं होगी, उसका सामान डैमेज हुआ तो भी रिस्क कवर नहीं होगी, क्योंकि ये रिस्क मोटर की पैकेज पॉलिसी में कवर होगी। और मोटर की पैकेज पॉलिसी हर व्हीकल के लिए लेना कंपलसरी है।
और डेट को भी वैलिड होनी चाहिए जिस डेट को सामान डैमेज हुआ, नहीं तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी क्लेम नहीं देगी। किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कोई लायबिलिटी आई वो भी पेबल नहीं होगी, और अटेंडेंस टैक्स पे नहीं होगा अगर एड ऑन कवर नहीं लिया है तो, टेररिज्म का डैमेज भी पे नहीं होगा अगर एड ऑन नहीं लिया है तो, इनहेरेंट वाइस या डिफेक्ट भी नहीं पे होंगे अगर टाइम ज़्यादा लग गया है तो, क्योंकि टाइम की रिस्क कवर नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज भी पेबल नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट अगर उसके पास कंप्लीट नहीं है, जैसे फिटनेस है या परमिट है, तो भी क्लेम पेबल नहीं है। तो पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, और जब क्लेम आएगा तो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएट नोटिस दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएट नोटिस की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अनलेस द लॉस इज फिजिकली वेरीफाइड, द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे द क्लेम। Who is this gentleman, Mr. Koti? Mr. Koti, mute yourself. Koti Madala. Mr. Koti Madala, mute yourself. क्यों ज्वाइन करते हैं ये लोग ट्रेनिंग? भाई अगर ये ट्रेनिंग में है ही नहीं तो व्हाट आर दे डूइंग? So immediate intimation of claim is required because the moment goods is damaged, this is the duty of the transporter to intimate to the insurance company. Insurance company will verify the policy document. Once they find that the risk is covered, they will depute a surveyor, and surveyor in turn will rush to the spot. He will physically verify the loss or damage of the goods. He will take the photographs. On that basis, he will assess the loss and will submit the report to the insurance company. On that basis, insurance company will settle the claim. ये क्लेम का प्रोसीजर है। अब इसमें से अगर एक भी चेन टूट गई तो क्लेम पे होना मुश्किल हो जाएगा। और जिसमें सबसे पहली चेन यही है कि अगर उसने इमीडिएट नोटिस नहीं दिया और गाड़ी वहाँ से हटा ली तो कितना लॉस हुआ है, कैसे हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। लॉस का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्लेम पे करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये है कि वो इमीडिएट इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को दे विदिन 5 days। हालांकि 5 दिन तक कोई भी व्हीकल एक्सीडेंटेड स्पॉट पर रहता नहीं, हट ही जाता है, लेकिन कई बार एक्सीडेंटेड स्ट्रेट फेस पर रहे ये जरूरी भी नहीं होता। तो इमीडिएट इंटीमेशन इज मस्ट। Then different kind of documents चाहिए क्लेम प्रोसेसिंग के लिए। Transportation business is a kind of business where these certain kind of documents are required specifically to settle the claim, because the information required from those documents is important. Like सबसे पहले तो मोटर व्हीकल की पॉलिसी चेक हो जाएगी, कुछ दिन की वैलिड होनी चाहिए। अगर 2 दिन पहले भी एक्सपायर हो गई तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी क्लेम पे नहीं करेगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट है तो डेको एग्रीमेंट वेरीफाई हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि कैरियर्स बाई रोड एक्ट 2007 के तहत इशू हुआ है वो भी चेक हो जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि Who is this gentleman? किसकी टीम में है ये? Sridhar, is he in your team?
श्रीधर, मिस्टर श्रीधर, you are also not there. How many people are not there in training? कहाँ ये लोग? श्रीधर भी ट्रेनिंग में नहीं है, ये कोटे मॉडल भी ट्रेनिंग में नहीं है। ये लोग क्यों ज्वाइन करके बैठे हैं? Mr. Kote Madela, you open your video. Mr. Kote, you open your video. He's gone. He was not in training since the beginning. These people are only connecting and then they are sitting at home. So as far as documentary requirement is concerned, certain documents are specific to the nature of the transportation, like goods receipt, goods forward note, and the certificate of registration issued by the Carriage by Road Act 2007. So this is the authority which is authorizing the transport firm to do the transportation business. This document is also verified at the time of claim. GR and good forward note are specific to the transportation business. They are must to settle the claim. Now, if you are giving this policy to any of the transporters or carriers to take the quotes from the support office, the bare minimum information you require to take from the transporter for getting the quotations is this one. How many vehicles are to be insured under the policy? What is their GVW? What is the limit of indemnity selected by the transporter? What add-on covers he wants, right and strike and terrorism? What is the type of vehicle body? Whether it is closed body, tanker, number of trailers, refrigerated vehicles. What is their range of vehicles? Type of cargo, past claim history. और सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्री पॉलिसी, इनके बेसिस पर ही प्रीमियम का कोटेशन अवेलेबल है। अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अंडरराइटर को चाहिए कंपल्सरी। विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन द अंडरराइटर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द कोट फॉर द पॉलिसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर shown or given by the transporter himself. This detail is must. Normally, every transporter will prefer to take a free policy. ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि उसके हर मोटर व्हीकल के लिए एक मोटर की कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए, और वो उस डेट को भी वैलिड होनी चाहिए जिस डेट को गुड्स लॉस्ट और डैमेज हुआ है। अगर नहीं है मोटर की पैकेज पॉलिसी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नहीं देगी, चाहे सिंगल पॉलिसी या फ्री पॉलिसी। दैट मीन्स मोटर पैकेज पॉलिसी इज मस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली कि किसी भी तरीके का कार्गो कैरी कर रहा हो कोरियर फर्म, सभी इसमें परमिटेड, केवल वो जो कि लीगली बैंड है। अगर ऐसा कोई आइटम लेके जा रहा है जो कि कानूनन मनाही है
और उसमें लॉस और डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। अदरवाइज किसी भी तरीके का सामान हो, अगर उसका रास्ते में लॉस हो गया, दिस पॉलिसी विल पे द क्लेम। दूसरे, नॉर्मली ट्रांसपोर्टर फर्म्स मैरिज ट्रांजिट पॉलिसी नहीं लेती है, कैरियर्स लीगल लायबिलिटी लेती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी किसी भी सामान में ओनरशिप नहीं है। ये जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं वो सामान इनका नहीं होता, किसी दूसरे का होता है। इनकी उस पर कोई ओनरशिप होती नहीं, इनको तो एक्चुअल कॉस्ट भी पता नहीं होती। लेकिन जिसका सामान है उसका अगर लॉस हो गया तो वो चाहे तो इंश्योरेंस से क्लेम ले सकता है, और अगर उसने मैरिज की ट्रांजिट पॉलिसी ले रखी है तो उसमें भी ले सकता है। लेकिन दोनों में से किसी एक नहीं लेगा। उसका राइट दोनों के अगेंस्ट में। उसने मैरिज ट्रांजिट पॉलिसी भी ले रखी है और ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है तो मैरिज पॉलिसी भी क्लेम ले सकता है। नहीं लेना चाहते ट्रांसपोर्टर से ले सकता है, आइदर ऑफ देम। देखिए, ट्रांसपोर्टर मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी इसलिए नहीं ले सकता कि ही इज नॉट द ओनर ऑफ एनी गुड्स, ही इज ओनली द कस्टोडियन। ही नेवर नो इवन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। हालांकि उसके ओल्ड व्हीकल्स भी और हायर्ड व्हीकल्स भी पॉलिसी में कवर होंगे और पॉलिसी 12 महीने के लिए इशू होगी। लेकिन वो जो लायबिलिटी सेलेक्ट करेगा वो लायबिलिटी सम इंश्योर्ड दो तरीके से होगी, एनीवन एक्सीडेंट और एनीवन ईयर। और ये दोनों लिमिट उसको खुद को सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हर लायबिलिटी पॉलिसी में जो क्लेम पे होता है वो तीनों दो में से किसी एक कैटेगरी में होता है, और मैक्सिमम लायबिलिटी एओए एंड एओवाई के बेसिस पर डिसाइड होती है, जो कि इंश्योर ने खुद ने सेलेक्ट करके दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनी उसी पर प्रीमियम चार्ज करेगी। अब ये एओए एंड एओवाई हैं क्या, ये देखने वाली बात है। कुल पिछले साल में कितना टर्नओवर किया है ये उस ट्रांसपोर्टर से बेटर तो कोई जानता नहीं। कुल पिछले साल में कितना टर्नओवर हुआ है उससे अगर ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है तो सम इंश्योर ज़्यादा लिया जा सकता है। कुल पिछले साल में जितना टर्नओवर हुआ उससे अगर कम की पॉसिबिलिटी है अगले साल की तो कम लिया जा सकता है, और ऐसा अक्सर होता है। उसके पीछे लॉजिक ये होता है ट्रांसपोर्टर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है या अपने व्हीकल्स को और कम करना चाह रहा है, और अगर कहीं कोई ब्रांचेस खोलना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है तो टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो ये जो सम इंश्योर्ड है एनीवन एक्सीडेंट और एनीवन ईयर लिमिट के बेसिस पर जो लिया जाता है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि ये उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी हो जाएगी दोनों केसेस में, इसलिए वो डिसाइड करते समय सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लिया वो कोई ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है या पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करता है या एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके व्हीकल में एक बार में मैक्सिमम स्टोरेज कितना हो सकता है और फिर उसकी वैल्यू कितनी है, वो उसका एनीवन एक्सीडेंट की मैक्सिमम लॉस लिमिट हो सकती है। वैल्यू मीन्स गुड्स कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी स्टोरेज है, एक बार में कितना मैक्सिमम ले जाया जा सकता है। वो भी आरसी में लिखा रहता है नॉर्मली। उससे ज़्यादा कैरी करते हैं तो फिर वो ओवर लोडिंग कहलाता है। उस पर तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी पेनल्टी भी लगा सकता है चाहे तो। ये उस आपने मैक्सिमम उसकी कैरिंग कैपेसिटी देख ली, उससे आपने उसकी रेट मल्टीप्लाई कर दी तो एनीवन एक्सीडेंट की लिमिट आ गई। ये एनीवन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई होगी कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो एक बार में इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम कितना क्लेम पे करेगी, क्योंकि अंडर नो सर्कमस्टांसेस इंश्योरेंस कंपनी विल पे मोर देन दी एनीवन एक्सीडेंट लिमिट
ऑफ द क्लेम। तो सम इंश्योर्ड हर ट्रांसपोर्टर पॉलिसी लेने से पहले सोच समझ कर लेता है, क्योंकि ही इज द पर्सन हु बेटर नोज हाउ मच इज द लिमिट ही इज रिक्वायरिंग, इंक्लूडिंग बोथ पर एक्सीडेंट एंड पर ईयर। तो ये फैक्टर कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, बैंक डिसाइड नहीं कर सकता। ये फैक्टर ट्रांसपोर्टर खुद ही बताता है कि हम एक बार में मैक्सिमम इतना का सामान ढोते हैं और हमारी ईयरली लिमिट इतनी होती है या टोटल टर्नओवर इतना होता है। फिर इस एओए एंड एओवाई पर प्रीमियम रेट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये एओ एंड एओवाई ही पॉलिसी का सम इंश्योर और इसी पर ही प्रीमियम रेट अप्लाई होगी। अब प्रीमियम रेट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रांसपोर्टर अप्लाई होती है। मान लिया कोई नॉर्मल गुड्स है, कोई हजार्डस गुड्स है, कोई एक्स्ट्रा हजार्डस गुड्स है, तो प्रीमियम रेट एक्स्ट्रा हजार्डस के ज़्यादा होंगे, हजार्डस के उससे कम होंगे, नॉर्मल गुड्स के उससे भी कम होंगे। होता है ना, कई बार ट्रांसपोर्टर आपने देखा होगा सब सब्जी कैरी करते हैं या फ्रूट कैरी करते हैं या एडिबल आइटम्स कैरी करते हैं या नॉन हजार्डस आइटम जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, आयरन रॉड्स हैं। तो इनमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज बहुत कम होती है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है वो उन पेरेंट्स में ज़्यादा है जहाँ पर कि फायर की पॉसिबिलिटी है या एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है या एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी है। तो प्रीमियम रेट उसी हिसाब से अप्लाई होगी। अब ये आपने पॉलिसी देखी है कैरियर लीगल लायबिलिटी की, इसमें सभी जगह मेंशन होता है क्या डिटेल है, कितने उसके व्हीकल्स हैं, कितनी बड़ी उसकी फ्लीट है, क्योंकि सम इंश्योर्ड तो उसने अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर ने ही डिसाइड करना है और प्रीमियम भी उसी बेसिस पे अप्लाई होगा। तो जो जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स की फ्लीट है, उनके पास एंट्री लेने में आपको डबल बेनिफिट होता है अगर आप उनको कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में सक्सेसफुल हो गए। हालांकि बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टर बिना कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के बिजनेस नहीं कर सकता। ये कानूनन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए कंपलसरी हो जाती है, इसलिए उसको लेना ही लेना चाहिए। और फिर उसे भी नहीं पता कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कहो तो गाड़ी लौट के नहीं आए, कहो तो गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। रास्ते की जिम्मेदारी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। लेकिन ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी उन सभी व्हीकल्स के लिए जो कि ट्रांसपोर्टर्स की ओनरशिप में है या उसके हायर्ड है, उनमें से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये पॉलिसी क्लेम पे करती है। केवल 4 पैरल इंश्योर्ड है, जिनमें कि फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। केवल 2 एड ऑन कवर्स हैं जिनको कि इंश्योर्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के पॉलिसी के साथ कवर करा सकते हैं। तो पॉलिसी इज वेरी सिंपल। ओनली थिंग इज योर मार्केटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द ट्रांसपोर्टर्स ऑफिस। Once you are succeeded to sell this policy, you have got another line opened for your premium. Because whatever number of commercial vehicles that transporter is having, all are subject to package insurance policy under motor insurance category. तो वो जब व्हीकल्स की इंश्योरेंस कराएगा तो you are the most comfortable person for him. Because you have already given him a policy of carrier legal liability insurance policy. It's a matter of trust. आपकी पॉलिसी में जो फीचर्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि पॉलिसी 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइमिंग दे रही है कवर ड्यूरेशन में।
और वो कवर ड्यूरेशन का टाइम ट्रांसपोर्टर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस पीरियड में नॉर्मली लॉस और डैमेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिफरेंट मटेरियल्स की फ्लेवर या स्मेल डिफरेंट होती है, फ्लेवर भी मैटर करती है, साइज भी मैटर करता है, क्वांटिटी भी मैटर करती है, प्लस स्टोरेज भी मैटर करता है, क्योंकि किसी में भी लीकेज हो सकती है, किसी में भी कट लग सकता है, किसी में भी डैमेज हो सकता है। तो कैरियर्स का या ट्रांसपोर्टर का बिजनेस का नेचर ही कुछ ऐसा है कि उनको खुद भी ये पता नहीं होता कि आज व्हीकल उनका सेफली लौट के आएगा कि नहीं, या इनका व्हीकल ये जो जा रहा है सेफली गुड्स डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, जबकि डेली वो इसी बिजनेस में रहते हैं। रास्ते में कोई भी इंसिडेंट, हड़ताल भी हो सकती है, दंगे भी हो सकते हैं, उपद्रव भी हो सकते हैं, टेररिज्म एक्टिविटी भी हो सकती है, मौसम भी खराब हो सकता है, रूट भी बंद किया जा सकता है, रिपेयर वर्क भी चल रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ रीजंस आते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ ट्रांसपोर्टर को उस वक्त होती है जब उसका लॉस और डैमेज किसी ऐसे कारण से हुआ है जो कि पॉलिसी में कवर ही नहीं है। वहां उसको समस्या हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करती। तो ये जो सिचुएशन है, इस वक्त प्रोटेक्टेड तो वो है। तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, यही मैनेज करते हैं कि भाई फायर या एक्सप्लोजन या एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस में दिखा करके क्लेम लेते हैं, और ज़्यादातर रीजन भी यही होते हैं नहीं कि वैसे पॉलिसी में लॉस और डैमेज होती है। पर अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ट्रांसपोर्ट नगर हर शहर में होते हैं, और एक एक ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों दुकानें होती हैं, और हर दुकान या हर ट्रांसपोर्टर के पास नंबर ऑफ व्हीकल्स होते हैं अनलिमिटेड। तो आपको इस पॉलिसी के लिए कोई भी एफर्ट्स क्रिएट करने के लिए नहीं करना। दिस इज इजीली सेलेबल पॉलिसी बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स आर अवेलेबल इन एवरी सिटी, ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स आर अवेलेबल इन एवरी सिटी। Other than transport nagar also there are transporters. We are concerned with the vehicles which are carrying the goods only, not the passengers. हमारी पॉलिसी में पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स कवर ही नहीं होंगे, केवल गुड्स कैरिंग व्हीकल्स ही कवर होंगे। हमारी पॉलिसी में मोटर क्लेम व्हीकल के लिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा, केवल माल के लिए लॉस और डैमेज की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी पॉलिसी में ना तो किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस हुआ वो मिलेगा, न थर्ड पार्टी के गुड्स को कोई लॉस हुआ वो मिलेगा। क्योंकि जो आदमी रोड यूज़र है या किसी अदर व्हीकल में यूज ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे व्हीकल के लिए वो थर्ड पार्टी तो हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी लायबिलिटी कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं है। ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी केवल मोटर की पैकेज पॉलिसी में कवर होगी, वही क्लेम पे करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट पे करते हैं, चाहे वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने के बाद करें। दिस इज देयर डिस्कशन। तो एज फार एज कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी इज कंसर्न, we are not very old in this field, but the policy is very good because all transporters need this policy. Plus this is associated with motor vehicle also. तब तो पॉलिसी काफ़ी 3-4 साल पुरानी हो गई है, आप लोग काफ़ी बेच भी रहे हैं, प्रीमियम भी अच्छा आ रहा है। कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी को थोड़ा पॉपुलराइज भी किया गया है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके का बिजनेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, मोटर का भी और कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी का भी। तो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर फर्म अपने व्हीकल्स का पैकेज बीमा ही ले करते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल के लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी लेना ना लेना एक बराबर है, क्योंकि उनके व्हीकल का लॉस तो उसमें मिलना नहीं कुछ भी। बस यही होगा थर्ड पार्टी के क्लेम पे करने से वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ी में ही अगर 10-20 लाख का लॉस हो गया
तो एक ही बात होगी, अपनी जेब से भरना, चाहे उसे भरो या ऐसे भरो। इसलिए ट्रांसपोर्टर फर्म नॉर्मली अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर के ही कराते हैं, और ये भी ध्यान रखती हैं कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं जानी चाहिए रोड पर। क्योंकि जितने आप ज़्यादातर देखेंगे, जितने भी व्हीकल्स की चेकिंग होती है उनमें से जीसीसी भी होती है। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल तो आधे प्राइवेट हैं, आधे गवर्नमेंट के हैं ऑन एंड एवरेज। गवर्नमेंट वालों पर तो वो हाथ डाल नहीं सकते, प्राइवेट वालों पे हाथ डालते हैं, तो वो भी इक्का दुक्का। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल को तो वो कहीं भी खड़ा कर देते हैं साइड में, चाहे वो ओवरलोडिंग का चक्कर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड गुड्स हो, इसी कारण से साइड में खड़ा कर देते हैं। और ऐसे केसेस में अगर व्हीकल जरा भी 1 या 2 दिन या 4 दिन खड़ा रह जाए तो लॉस और डैमेज तो होगा ही गुड्स को। तो ऐसे बहुत अनसर्टेन रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से पॉलिसी में लॉस आएगा, लेकिन ये सारे लॉस केवल एक ही पॉलिसी में कवर हो सकते हैं, वो है कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। हालांकि ये पॉलिसी लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अदरवाइज हैव टू पे द अमाउंट फ्रॉम योर पॉकेट। So this is all about the career legal liability insurance policy. If you have any questions, you can ask me. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आप कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये प्रॉब्लम तो सारी कंपनियों में है, क्योंकि बैंक का चैनल में ये प्रॉब्लम शुरू से है। अगर कोई बैंक बिजनेस होगा तो बैंक तो सिर्फ उतने का ही बीमा कराएगी जितना उनका मनी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, तो उसमें ये किया जा सकता है ना कि कुछ पैसा अपना इंश्योर खुद में डाल दे और सब इंश्योर पूरा करा ले, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट का लॉस तो इंश्योर को ही होने वाला है। तो अगर इंश्योर चाहे तो पूरे पैसे के ले सकता है, लेकिन बैंक का क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट उतना ही होता है जितना आउटस्टैंडिंग लोन है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। वो पैसा ज़्यादा देते नहीं हैं और क्लेम की उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि क्लेम कम मिले, ज़्यादा मिले, कम मिलेगा तो इंश्योर जिम्मेदार है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि उनकी तरफ से बीमा होना चाहिए बस। आप इंश्योर को ज़रूर समझा सकते हो कि भाई तुम्हें अगर वो आपके समझाने के ऊपर है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उसे समझाओगे और चीज़ को क्लैरिफाई करोगे तो वो कई बार समझ जाते हैं। कुछ लोग, मैं ये तो नहीं कहता सारे समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कि मेजर अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, मान लिया किसी ने अपना शोरूम खोलने के लिए 1 करोड़ बैंक फाइनेंस लिया हुआ है और उसकी दुकान में 2 करोड़ का सामान है या 2 करोड़ की दुकान है, तो बैंक तो उसको पॉलिसी लेगी तो 1 करोड़ से ज़्यादा की लेगी, तो वो वहाँ दिक्कत आएगी। अब वो आप उसको ये कन्विंस करते हो कि भाई अगर तुम कोई लॉस हो गया, मान लिया पूरा की पूरा भी लॉस हो गया,
तो आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस है, 1 करोड़ का भी क्लेम नहीं देगी, इसमें से भी पॉलिसी क्लॉज काट के देगी, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। इसके बजाय इस वक्त आप कुछ हज़ार रुपये और दे करके अगर इसका पूरा बीमा 2 करोड़ का करा लें तो आपका क्लेम में कुछ भी कटेगा नहीं। अब हर आदमी ये सोचता है कि इंश्योरेंस हो गया, अब कुछ नहीं होना है, कोई लॉस वॉस नहीं होने वाला है। अगर ऐसी मेंटेलिटी है तब तो कहीं एक घटना हो जाती है तब उनको लेसन मिलता है कि भाई आग तो लग सकती है या नुकसान तो हो सकता है, तब उनको समझ में आता है।